होगा। मैं आपको एक टॉपिक दूंगा ग्रुप डिस्कशन का, और उसके तीन कंपोनेंट्स होंगे। देयर विल बी थ्री कंपोनेंट्स ऑफ दैट। वन इज इंट्रोडक्शन कंपोनेंट, देन द बॉडी कंपोनेंट, एंड देन द कंक्लूजन कंपोनेंट. In the introduction component, you are to tell about the topic to others. So as I request all of you to watch the three videos which are there on Yourpedia: how to start GD, how to conclude GD, and how to enter in the GD. These are the three videos which you people should watch, and then you should practice a lot. So you are to basically start the discussion, and then the body part mein you have to listen to others, you have to speak with others, and conclusion if you want to do, then keep writing the important points, and then at the end I'll ask you to conclude the discussion. So you people are to write in your pages, in your copy, some important points which other are discussing. And in actual GD also, when you go for the actual GD, तो यही होता है, वो आपको पेन एंड पेपर देते हैं और आप उसको लिखना होता है। आपको लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वर जो तुम्हें देखता है कि तुम लिख रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। सो ऑब्जर्वर तुम्हें बड़े ध्यान से देखता है कि तुम पार्टिसिपेट कर कैसे रहे हो। नोट्स मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जीडी का। सो इफ यू आर सिटिंग इन द जीडी, पार्टिसिपेटिंग इन द जीडी, बट नॉट मेकिंग स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स, then that is not a good GD. So the observer will somewhere not give you that good marks if you're not writing. Number two, are you listening to others or not? So listening is not important. It should look like that you are listening. And how does it, how you have to reflect that you are listening? You have to do nodding. You have to maintain eye contacts with others. You have to show attentiveness. You have to sit in the active mode, not relaxed mode on the chair. You have to sit in the active mode. जब कोई बात कर रहा है तो उसकी बात आपको ऐसा रिफ्लेक्ट करना है कि आप उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे हो, और ऑब्जर्वर फिर आपको सुन रहा है। स्टूडेंट्स को लगता है जीडी इज ऑल अबाउट नॉलेज एंड स्पीकिंग। नो, GD is about listening to others. GD is about writing on the page. GD is about giving chance to others. If you find that somebody is not speaking, let us say you find that Shrikant is not speaking. Okay, Shrikant, I think you should also give your point in the discussion. So you should give this kind of chance to Shrikant. ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, जिनकी वजह से मार्क्स मिलते हैं आपको। और जो जीडी में इन छोटे छोटे पॉइंट्स को फोकस करता है, चाहे उसको नॉलेज है जीडी का नहीं है, उसको नंबर मिल जाते हैं, पास हो जाता है। सो इवन इफ यू डू नॉट नो अबाउट द टॉपिक, you can pass GD, and that is what is the mantra. That is what I tell my students, that you practice those things कि आप पास हो जाए। ऑब्जर्वर अगर देख रहा है आपको, तो उसको लगना चाहिए कि आप अटेंटिव हो, आप इंटरेस्टेड हो डिस्कशन के अंदर, आप बाकियों से बात कर रहे हो, बाकियों की बात सुन रहे हो, और आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो, ये उसको लगना चाहिए। नंबर टू, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप दूसरों को बोलने नहीं दे रहे। तो आप दूसरों को अननेसेसरी मत कट करो। कट जरूर करना होता है, जीडी में कट करना होता है। जीडी में ऐसा नहीं है कि साहब तुम्हें दूसरे को बोलने देना फिर तुम्हें चांस मिलेगा। नो, यू हैव टू कट हिम, बट इट शुड नॉट लुक लाइक यू हैव कट हिम अननेसेसरी। कट कर दिए, तुम्हारे पास बोलने को कुछ नहीं है, देन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो आपको अगर कट किया है तो आपके पास भी बोलने के लिए कुछ होना चाहिए। जब आप यहाँ पे आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं आपको ज्यादा टाइम देता हूँ। आई गिव यू हाफ एन आवर टू स्पीक। एक्चुअल में तुम्हें टाइम मिलेगा 15 से 20 मिनट, लेकिन क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस हम लोग कर रहे होते हैं, तो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ दैट यू पीपल शुड स्पीक मोर, सो दैट you get good practice. Sometime you will find that everybody is speaking and you are not getting chance. Don't worry. When people will not speak, then you enter and then you practice. So the practice will only make you perfect. This is how GD is to be done. Now, anything you want to ask before I give you a topic and then we start the discussion? You have any question to ask me? Or should I give you the topic? Sir, you can give the topic. Yeah, tell me again. Sir, you can give the topic directly. Yes, the topic is, I have already sent you now. Work-life balance is a myth. Work-life balance is a myth. ये important topic है वर्क लाइफ बैलेंस से। वर्क फ्रॉम होम, वर्क लाइफ बैलेंस, दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स आर important for topics. वर्क लाइफ बैलेंस इज अ myth. 2-3 मिनट दूंगा आपको, and then we can start it.
Okay, friends, please unmute yourself now and unmute yourself, and one of you can start the discussion now. Okay, okay. Good I'm evening, sir. And friend. my name is Rohit Yadav, and I take the opportunity to start the GD. And the today topic of GD is work-life balance is a myth. Friends, in my opinion, it is a very relatable topic in today environment. We can see that in today's scenario, India is in a growing phase. So there is a more competitive environment. So we have to work very hard to survive in this competitive environment. So we are more work for our survival. But there is, I want to say another aspect also, that is some more famous personality work very hard and maintain their personal and family life. So I am opening the house for the topic work-life balance is a myth to all of the uh, members to discuss on this topic. Thank you. Yes, I जब am भाई very much हमें agree हमें with आगे you. मूव करने से पहले हमें व्हाट इज मीन्स बाय वर्क लाइफ बैलेंस वी शुड डिफाइन दैट इन माय ओपिनियन actually apart from your professional work you have responsibility towards your family towards society and also you should need your time to enjoy and make your uh, mind free healthy and other things so always the responsibility towards your children uh, and your wife your parents apart from that you participate in your you do your hobbies you give times for your hobbies and also you participate in the events and cultural events what going towards you so I think if you getting both balance time for both professional as well as for your time then it is the we can call it work life balance. Yes, Rohit, I My am very much agree with you that important is balance is needed in everything. So Yeah. right, we can do right works in right time. Very many मैं बहुत प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय को भी देखा हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर वालों को भी देखा हूँ, जो एम्प्लॉय क्या करते हैं उसका काम ड्यू रख देता है, पेंडिंग रख देता है एंड हाउ होम में आके वो काम करता है, तो उसका उसके लिए उसको वर्क लाइफ बैलेंस हैम्पर होगा ही. हम लोगों को टाइम टेबल फिक्स करना चाहिए कि हाँ हम लोग ये काम ये टाइम टेबल में करेंगे एंड अगर हम लोग वर्क राइट टाइम में करेंगे तो वर्क लाइफ बैलेंस का कोई हैम्परिंग नहीं होगा. आई थिंक दैट. But Yes, I Friends, agree I with think this. I am I agree with completely Sam. agree with Work-life balance is this statement important, and we can because attain in balance by every job like continue. स्पीक. वर्क लाइफ बैलेंस में बैलेंस बिठाना बेसिकली एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट है. बैलेंस बिठाना मतलब कि टाइम मैनेजमेंट स्किल करना. जैसे हम जानते हैं कि कई सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनके पास बहुत काम होता है पर्सनल लाइफ सोशल लाइफ और ब्रांड्स वगैरह में, बट उसके बाद भी दे आर एबल टू हैव अ वर्क लाइफ बैलेंस क्योंकि दे हैव अ स्ट्रिक्ट टाइम शेड्यूल. और दूसरा मेरा ये बिलीफ है कि वर्क लाइफ बैलेंस इस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का काम कर रहे हैं, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है. अगर आप एक 9 to 5 आईटी जॉब में है जहाँ पे कंपनी को ये चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी प्रॉफिट और अपनी सेल्स बढ़ाएं, तो उस केसेस में एम्प्लॉयज को जो है वो वर्किंग आवर्स के बाद भी काम करना पड़ता है. और साइड बाय साइड जैसे यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो अपना वर्किंग आवर्स में ही जो है वो अपने लिए सेल्फ केयर भी ब्लेंड कर सकते हैं. तो ये इंडिविजुअल Yes, Reena. और Yes, जॉब Rina, I am प्रोफाइल very पे much डिपेंड agree with I you. agree Yes, with you. yes. It is Yes, ये सही बात है absolutely कि I agree agree with with you, Reena. Reena. but what it And is so uh, I वर्क लाइफ want बैलेंस to जो say है ना, that वर्क work-life लाइफ बैलेंस balance जो है is a बैलेंस करना myth, थ्रू द but प्रोजेक्ट it थ्रू द प्रोजेक्ट sometimes पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट. depend. मैं Work-life बात balance बिल्कुल एग्री is a हूँ सर myth. कि वर्क लाइफ Okay. बैलेंस एक मिथ है क्योंकि हर कोई सोचता है कि मैं अपने लाइफ में फ्यूचर में अपने बैलेंस को बना के रखूंगा. वो हर चीज डिसिप्लिन फॉलो करने की कोशिश करता है लेकिन सामने कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं जो वो खुद कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. तो वो जिसकी वजह से जो हमारी जो फ्यूचर प्लान होते हैं बैलेंस करने के वो सारे के सारे बिगड़ जाते हैं. कुछ जैसे हो मैं सकता है कि हम स्टेटमेंट के अपने फेवर में हूँ. इस स्टेटमेंट के फेवर में इसलिए हूँ क्योंकि एवरी कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो, प्राइवेट प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, तो वहां पे क्या होता है कि जो इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट होता है वहां पे इतने सारे काम रहते हैं, आपको दिन रात मतलब एक करके काम करना होता है.
तो उस इनिशियल फेज ऑफ प्रोजेक्ट में 2-3 मंथ या 4 मंथ जितने टाइम लग रहे हैं, जब तक सारे एक्टिविटीज वगैरह शेड्यूल सही से नहीं हो जाते हैं, तब तक मतलब आपका वर्क लाइफ बहुत तरीके से बहुत मतलब खराब चलते रहता है। या आपका ऑडिटिंग चल रहा है, साइट पे ऑडिट ऑडिट वगैरह चल रहा है, तो इससे क्या होता है कि आपका वर्क लाइफ बहुत मतलब क्या कहते हैं, आप फैमिली को टाइम नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक जैसे ही प्रोजेक्ट आपका एक मतलब अच्छे तरीके से मतलब स्टार्ट हो गया, उसके बाद अब जितने रिमेन पीरियड में उस पीरियड में आपका वर्क लाइफ बैलेंस मतलब सही लेकिन रहेगा। प्रोजेक्ट I इसलिए agree हम with बोलते हैं कि Shrikant. वर्क One लाइफ time जो we ऑफिस बैलेंस टाइम जो है होता है इनिशिएटेड फ्रॉम द डिफाइन ये होता है सही रहेगा। ऑफिस टाइम। ये मैं एक्चुअली जो Work-life प्रोजेक्ट टाइम balance में भी is very स्टार्टिंग important for us. I would ऑफिस टाइम like होता है, to वो say डिपेंडेंट होता है। the work-life balance is a जो sentence the sentence is given that the work-life balance is a myth. It I think it is totally depend on person to person. For some person, it is a myth, but some personality maintain their work with their personal life and their family. If I talk about the more famous personality Virat Kohli, we also see in some videos or even by him how he maintaining their career and their family. So it cannot be totally true that work-life balance is a myth. It can be true for some person and it cannot be true for some other person. So we Rohit, should actually, it depends on the partially organization Yes, also. yes. I partially agree If with the I you. agree with employer the Rohit. allows flexible timings or to choose between the multiple shift, which shift according to his interest he want to work, so then that will be beneficial for work-life balance. Then in the remaining time he can pursue his personal interest or hobbies. फ्रेंड्स यस I want आई to एम say एग्री that विथ यू। what if लेट्स it is possible? हम लोग अगर देखते हैं जो फेमस एक्टर है, आई थिंक वो सब भी एक के बाद एक फिल्म करता है एंड देन वो सीरियल्स में भी काम करता है। तो प्रोडक्शन हाउस में वो लोग रहता है, फिर भी वो लोग एक स्ट्रिक्ट हैवी टाइमिंग के लिए अपना पर्सनल टाइम भी फिक्स कर सकते हैं एंड फ्रेंड टोटल सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं, वो वर्क लाइफ बैलेंस अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो ये अपना ऊपर होता है। और प्रोजेक्ट के जो स्टार्टिंग फेज है, स्टार्टिंग फेज में भी जो ऑफिस टाइमिंग है, ऑफिस टाइमिंग आपका डे में ही होता है एंड आफ्टर दैट आप घर में आइए, घर में आके भी अगर कुछ काम करना होता है, काम करके भी फैमिली को हम लोग टाइम दे सकते हैं। काम नहीं 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 काम मैं Yes, yes. मैं अगेंस्ट में हूँ, Yes, क्योंकि I मैं विराट agree कोहली with का ऑलरेडी you. मैं काम एग्जाम्पल जो करके मिल आया रहा है हूँ। हमें, वर्क लाइफ मैं बैलेंस किसी ये अपना कंपनी जो में माइंड पहले होता काम है करता था, वो रिलैक्स वहां पे जो है मैं इससे पहले किसी कंपनी में काम करता था, वहां पे जो है इनिशियल फेज ऑफ प्रोजेक्ट में घर का मतलब घर से जो कॉल आता था उनको रिसीव करने का टाइम नहीं रहता था, इसलिए मैं यहाँ से मैं भी Yes, प्रोजेक्ट में ही हूँ Shrikant. So अभी। इनिशियल टाइम में that's मैं why भी प्रोजेक्ट में ही काम कर रहा हूँ। it is dependent on person to person. We cannot totally say that work life balance is not possible. It is possible for some. बट Yes, दे टाइप yes, ऑफ yes. person Yes, are yes. बहुत I agree with the Rohit वो Yadav. बहुत कम है। श्रीकांत, बट आई अग्री ये विद श्रीकांत, बिल्कुल भी जैसे कि जो पॉसिबल है प्रोजेक्ट कि वगैरह जैसे कि होते वर्क हैं, लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन ये एक पूरे लंबे समय के लिए बैलेंस करना चाहें तो नहीं होता। जैसे कि रोहित ने कहा यस कि ये विराट कोहली के लंबे वर्क टाइम लाइफ के लिए बैलेंस बैलेंस उसने करना। बताया, लेकिन अगर कुछ विराट उसके कोहली जो है, विराट कोहली कुछ अपना सारा सिचुएशन पूरी यूट्यूब पे बताता है या हाँ सोशल मीडिया पे शेयर करता है। वो तो जस्ट वही शेयर करता है जो उनको मतलब लग रहा है कि हमको लोगों को दिखाना है कि हम वर्क लाइफ बैलेंस करके Actually, चल रहे हैं, लेकिन वो उसके साथ भी श्रीकांत, मैं भी बहुत यही सारे कहना चाह रहा सिचुएशन हूँ he हैं। doesn't कि play, वर्क he लाइफ gets बैलेंस break from the हम busy नहीं Yes, बता life, सकते। Shrikant, so I he am can not. विराट maintain his कोहली का I ही work am जो life balance. एग्जांपल दिया गया है, वो अगर कम्प्लीटली कुछ उसके कम्प्लीटली हम पिछले एग्री साल नहीं की हो बात सकते। किया जाए तो it is उसमें not अब be हम देखेंगे possible. कि उसकी वर्क I लाइफ am not बैलेंस काफी saying अच्छी that तरीके से बिगड़ी it हुई is थी। not तो ये possible. हम I नहीं कह am सकते कि saying विराट कोहली that का it जो is एग्जांपल था possible. वर्क लाइफ बैलेंस है उसकी। I am not disagree all your point. I am saying just like it is possible some for some people, but it is work life balance is a myth. It is not true for all the personality, all the person. It is a myth. It is not true. But for some person, they are managing their life with their family. I want to say this because I am I not totally agree I with this point. Yes, yes, I I agree agree with with you, Rohit. Rohit. मैनेजिंग बेसिकली हम मैनेजिंग इस लाइफ तरह इज से नॉट वर्क Generalize कह लाइफ the बैलेंस। सकते हैं statement by कि जो saying वर्क मैनेजिंग लाइफ लाइफ इज बैलेंस नॉट है वर्क लाइफ रूरल बैलेंस। और अर्बन अपनी भी सेक्टर में भी डेवलपमेंट हम होती है और डिवाइड कंपनी कर की भी सकते हैं डेवलपमेंट होती है। कि जैसे कि जैसे रूरल एरियाज में जो फार्मर्स होते हैं या जो लाइफ स्टॉक का ध्यान रख रहे हैं, उनके लिए वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना रिलेटिवली इजी हो सकता है और अर्बन एरियाज में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि सिर्फ हम लोग फेमस पर्सनैलिटीज को
नहीं देख सकते। एक कॉमन मैन के लिए ये भी इम्पोर्टेंट होता वो है कि 0.1%, फियर ऑफ 0.2%। अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्रोवाइडिंग द फैमिली, कभी कभार वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है देन मेंटेनिंग वर्क लाइफ एंड सेल्फ केयर। तो उस केसेस में वो पर्सन फोकस करता है कि मैं ज्यादा काम कर सकूं और अपने फैमिली को प्रोवाइड कर सकूं। Yes, रीना, अभी मैं रिसेंट इस हम लोग स्टेटमेंट देखे के हैं, लाइक हम मैं इस रिसेंट इन स्टेटमेंट के कर्नाटका फेवर गवर्नमेंट, में भी एक एग्जांपल और देना चाहूंगा कि हमारे जो अभी रिसेंट इन हमारे जो कर्नाटका इससे गवर्नमेंट इज पहले जो trying to raise the working hour from 14 hour, and it is the IT union of the Bangalore IT union who raised the Yes, concern. I have heard the news. If the working hour will be Yes. 14 hours, what happen if you want to maintain the work life balance, but it is the forced work and you have to perform in company also, that pressure will ultimately hamper you. And also, if you talk about the World Health Organization and international level organization, World Health Organization and WHO and ILO, they also mentioned that if a person is working more than 8 hour or more than 8 hour, it will hamper his health. It can cause the heart disease and the stroke deaths, Yes, etc. Rohit, मैं Yes, इस also agree स्टेटमेंट with के you. That is इस very स्टेटमेंट से important एग्री और आपकी example. कहानी balance में is एग्री I very हूँ want to important. add कि one more हम लोग example. अभी In rights of इससे Japan, पहले क्रिकेट का there जो is है क्रिकेट में जो है there is मतलब इसे 49 श्रेयस hours अय्यर work. और आपका जो है There is एक और क्या था, there is श्रेयस अय्यर 14, था 49 hours works have to work in Japan. In Japan government, in also there is passing a rule that is a person who is work in any company that have to work 49 hours in a week. So that is hectic. I agreed, and it is more uh, pressurized to a person because if we work beyond our capability, that will hamper our health. So that is not much important. That is not very good thing. So we have to maintain our health and we have to maintain our daily routine. So if we work very hard, so that will not be maintaining. So it is not 100% possible true. in that scenario that is work balance our life, work life and family. So a So person can Rohit, do मैं 14 मैं hours. इस स्टेटमेंट के मैं मैं इस स्टेटमेंट के बिल्कुल फेवर में टॉपिक से एक एग्री हूँ। एग्जांपल Actually, देना it's चाहूंगा also depend कि on हमारे the जो different part of life क्रिकेटर्स जो now. हैं मेंटेन नहीं कर क्रिकेटर्स पाते का अपनी लाइफ लाइफ भी हम वर्क लोग लाइफ मतलब बैलेंस। देखते हैं कि बहुत मतलब रॉयल लाइफ होता है, लेकिन क्या है कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि श्रेयस अय्यर वगैरह का जो मतलब जितने खिलाड़ी हैं, श्रेयस अय्यर खिलाड़ी हैं, तो उनको हम देख रहे हैं कि उनको मतलब कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया, उनको कंटिन्यूअस मैच खेलने के लिए बोला जा रहा था, लेकिन उन्होंने बीच में मना किया क्योंकि उनका वर्क लाइफ बैलेंस जो है बिगड़ता जा रहा था, इसलिए उन्होंने कुछ बीच में मना किया। इसके कारण बीसीसीआई ने उनके कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि खिलाड़ियों को जो है भले ही देखा जाता है कि उनका लाइफ मतलब रॉयल लाइफ है, लेकिन मतलब ऐसा कुछ नहीं है, उनका भी वर्क लाइफ बैलेंस बहुत तरीके से, बहुत गंदे तरीके से बिगड़ा हुआ है। ठीक है, अगर दिखाया जाता है कि तो लाइफ होगा ही, लेकिन उसको फुल हैंडल नहीं करना होगा। प्लान तो बनाना ही पड़ेगा, कैसे उसको कम किया जाए। बैलेंस को फॉलो If we नहीं do कर not सकते maintaining completely. our health, so we can lose our job also, because if do not maintaining our health, so you can lose our job also. So you have to maintain our health. So that is very important. I agree with Apart from Rohit. Yes, health, yes, The I agree efficiency with of the work will Rohit. get hampered. Yes, people sorry, true. Coming Guys, to the it coming to the health depend on different phase of life. Like in the early age, if we have to work hard, like what if लाइफ you के अलग अगर अलग आप टाइम थक पे हम जाते लोग हो, को उसके अलग बाद अलग काम करते अलग हो, अलग तो देखना होगा ना। हम लोग एक समय परफॉर्मेंस एक विल गो पूरा डाउन। लाइफ को So it's एक need सिंगल फेज में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि so पूरा it's पूरा need लाइफ एक सिंगल फेज में नहीं होता है। जैसे अभी हमारा ईयरली एज है, तो अभी हम लोग को ऑब्वियसली वर्क हार्ड की तरफ जाना होगा, लेकिन आफ्टर गेटिंग ए सर्टेन लेवल और ए सर्टेन स्टेज वी कैन इजीली मैनेज इट। लेकिन अगर अभी ही हम लोग अगर बैलेंस लाइफ की तरफ, हेल्दी लाइफ की तरफ, या फिर जो जैसे हम स्टार्स को देख के चलते, वो प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर ये ले रहे हैं, वो ऐसा ले पा रहे हैं क्योंकि वो एक सर्टेन स्टेज पे पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। सो उनके वर्क पास कौन लाइफ सा बैलेंस जो है आफ्टर गोइंग जॉब, जॉब पे जाने के बाद में with ठीक कर Akash. रहे हैं। Age factor is प्लान also बनाएंगे, important टाइम because टेबल क्या फिक्स हमारा करेंगे, वर्क देन लाइफ इट इज पॉसिबल। क्या स्टेटस then the ऐसा नहीं है कि नहीं responsibility पॉसिबल shifts, है। and as we age the responsibility factor also comes into play. जैसे जैसे हम एज होते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, तो हम चाहते हैं कि हम ज्यादा काम करें, ज्यादा प्रोवाइड करें, तो एज फैक्टर इज एग्जैक्टली ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
yes Exactly, but because at different phase of life we have to work लेकिन अगर हम differently. हेल्थ को बैलेंस नहीं करेंगे तो हमारे आगे फ्यूचर में हमारी हेल्थ ही नहीं सही होगी तो हम वो स्टेज को कैसे पहुंचेंगे? तो I हेल्थ think को in भी पूरा तो टाइम हम individual लोगों को we जो can टाइम follow मिलता one है काम basic करने का वो rule. तो टाइम में काम करना No, ही no, no. पड़ेगा Like सपोज यस अभी जैसे कि I हम am लोग not yes saying that लेकिन we will directly separate इस from the वर्क लाइफ health. Like बैलेंस से if अगर इतने अभी अच्छे हम से लोग फॉलो नहीं हो पाएगा हम लोग 10 घंटे काम नहीं कर पा रहे तो हम लोग 10 घंटे काम कर रहे हैं या फिर बाकी के टाइम हम लोग रेस्ट कर रहे हैं या फिर बैलेंस लाइफ जी रहे हैं। तो अगर अभी भी हम लोग ऐसा सोच के करें कि अभी से हम लोग को बैलेंस लाइफ करना है या फिर बहुत ज्यादा आराम करके चलना है या फिर बहुत ज्यादा चीजों में इक्वली ये देना है, तो अभी हम लोग उस स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और जो सर बोल रहे हैं कि अगर हम लोग अभी से नहीं, बैलेंस लाइफ नहीं उसी जिएंगे चीज को तो तो बैलेंस बैलेंस करना है कि हमें yes हमें हर yes आई चीज एग्री को विद आकाश प्रॉपरली बैलेंस आकाश करना है उन आकाश चीजों अगर को। हम लोगों को 12 तो घंटा भी काम करना पड़ा फिर भी तो हम लोगों के पास 12 घंटा है उसमें से हम प्लान कर एग्जैक्टली सकते हैं डिसिप्लिन वाइज प्लान कर सकते हैं मैं यही बताने का कोशिश कर रहा हूँ हर प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली हम लोगों का जब अभी हम लोग जब स्टार्टिंग फेज में स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों को काम सीखना पड़ता है तो इसीलिए हम लोगों को ज्यादा टाइम लगता है लेकिन एक उस वो टाइम में फ्रेंड्स वो टाइम भी 12 घंटा होगा 12 घंटे का अगर काम कोई होता चीज है ना, बाद भी हम लोग कंसिस्टेंटली है, 12 कर अगर घंटे का सकते हैं अगर स्टार्टिंग काम में कोई होता चीज है तो कंसिस्टेंटली उसमें अगर 16 हम घंटे कम लगते समय में हैं। भी लगातार कंसिस्टेंटली मेहनत करेंगे तो भी हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं। और शुरुआत अगर में हम यस बहुत कोई यस मेहनत जॉब कर जो लिया है 12 घंटे और कोई फिर जॉब जो बाद है में उस चीज को कोई जॉब छोड़ दिया 12 फिर तो घंटे फिर का हम है कैसे हम तो उसको अचीव उसको करेंगे? कंप्लीट करने के लिए टोटल 15 आवर लगते हैं। ऐसा नहीं है कि 12 घंटे का काम है तो 12 घंटे में कंप्लीट होता है, ऐसा नहीं है। यस यस मैं वो 1 साल 2 साल बाद आप यस एक्सपीरियंस यस गेन देखा, करेंगे तो वो आप 12 घंटे का काम आप 12 अगर घंटे में ही 12 हो बजे जाएगा 12 घंटे का अगर काम है तो हमको श्रीकांत 6 बजे सुबह जगना होता था, 8 बजे जाना पड़ता था तो 2 घंटा ये उसमें लग जाता था। फिर आते थे 8 बजे, फिर मतलब आते आते 9 9:30 बज जाता था। तो 12 घंटे का काम 16 घंटा हो जाता है। ठीक है, आप I कहीं भी think जाइए, हम भी I think हम जाइए इंडिविजुअल या लेवल पे आप ये कर किसी को सकते हैं कि जाइए या एक बहुत मतलब भी बेसिक प्रोजेक्ट प्राइवेट हम सेक्टर भी में जाइए। प्रोजेक्ट में है एक्चुअली क्या होता है जो प्रोजेक्ट साइट होता है वो हम लोगों के घर से बहुत दूर होता है तो मैं भी जानता हूँ ये हम लोगों का जो ट्रांसपोर्टेशन में आप जो बताया सिकंद जो ट्रांसपोर्टेशन में आपका टाइम लगता था उसको भी हम लोग पास में अगर कोई रूम लेके हम लोग उसको भी मैनेज कर सकते हैं तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम लोग उसको कम कर सकते हैं जितना हम लोगों का हाथ में है उसको तो हम कम कर सकते हैं यस जो यस yes हमारा yes हाथ में I नहीं है agree लेकिन उसके हर लिए केस बात में करना सही नहीं है प्लानिंग प्रॉपर वर्क को हम शुरू से ही करना मुश्किल बैलेंस रहता करके है। करें, प्रॉपर वर्क शुरू से ही करें। यस और जैसे आपने बताया कि हम पास में रूम ले सकते हैं, इस तरह के कुछ मैनेजमेंट। और हम जैसे वर्क है, कभी कभी हम क्या करते हैं कि शुरू में स्लोली करते हैं और देन हमारे लास्ट में हम उसको फास्ट करने की कोशिश करते हैं। बट एग्जैक्टली अगर वो हम लोगों का एग्जैक्टली स्टार्टिंग में टाइम एग्जैक्टली लगेगा ही स्टार्टिंग में अचीव कर सीखने के सकते लिए हैं। टाइम लगेगा ही फिर जितना टाइम हम लोग एक्सपीरियंस गेन करेंगे तो वो 10 घंटे का काम हम लोगों को 8 घंटे में हो सकता है अगर हम लोग हाँ, उसमें एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं नहीं तो पहले नो तो नो 10 घंटे का काम हम लोगों को आई एम 15 घंटा एग्री लगेगा विद ही दिस स्टेटमेंट। but would rest like आई to but एम I एग्री विद believe दिस rest स्टेटमेंट is कि also स्टार्ट important to जैसे जैसे increase the एक्सपीरियंस बढ़ेगा हम लोग efficiency लगेगा सर हमारे efficiency जैसे टाइम। जैसे हम लोग एक्सपीरियंस गेन करते रहते हैं वैसे वैसे हम लोग मतलब क्या नाम वहां तक वो पहुंच पाते हैं कि अभी जैसे कि हम लोग मतलब जॉब भी कर रहे हैं प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो वर्क लाइफ बैलेंस फॉलो करना मतलब क्या थोड़ा सा मुश्किल होगा हम लोग के लिए। लेकिन अभी जैसे कि हम लोग जॉब लग जाएगी तो उस केस में हम लोग वर्क यस यस लाइफ यस बैलेंस इजीली फॉलो कर सकते हैं। यस आई एम फ्रेंड्स ठीक स्ट्रांगली है, एग्री मतलब मैं not मान रहा always हूँ wait for कि the right आप moment मतलब to बोल रहे हैं start the कि work वर्क life लाइफ बैलेंस balance मेंटेन हो जाएगा। यही ठीक है, अगर कोई काम जो है 10 घंटे का है, आप बोल रहे हैं कि मैं इसको 8 घंटे में कर लूंगा एक्सपीरियंस से, ओके लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे आप मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है वैसे वैसे आपके ऊपर जो है बर्डन भी बढ़ाया जाता है, वो Yes, फैसिलिटी श्रीकांत, बर्डन उसका श्रीकांत, सैलरी I'm सब बढ़ाया also जाता agree है। with लेकिन आप बोल नहीं सकते अगर हैं कि 10 घंटे का काम 8 घंटे में कर लेंगे। काम ज्यादा है नहीं तो 10 घंटे का काम अगर आई हैव 12 सीन घंटे सो में भी मेनी होगा मैनेजर्स ठीक है फिर भी तो हम लोगों आई का हैव 12 सीन घंटे सो रहेगा मेनी मैनेजर्स मैंने मैं बहुत ये सारे बोलने का मैनेजर कोशिश कर देखे रहा हूँ हैं साइट पे एकदम कंटिन्यूअस 12 घंटे 14 में हम लोग 8 बजे चले जाते थे, लेकिन वो 12 बजे कंटिन्यूअस साइट पे बैठ के कंटिन्यूअस वो मतलब सारे प्रोजेक्ट का रिपोर्ट वगैरह सारे बना रहे हैं। ओके तो उनका श्रीकांत, बिल्कुल Okay, शेड्यूल Shrikant, बिगड़ा हुआ है। I think we have reached to the हम लोग individual level of completely the मैनेज नहीं work-life कर सकते, balance. थोड़ा बहुत So कुछ इस टाइम तक हम मैनेज कर I सकते think हैं। हम लोग I think we need 100% to ऑल द टाइम वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मेंटेन कर सकते, ये बात तो सब अग्री करते हैं। बट हम इंडिविजुअल लेवल पे ये कर सकते हैं कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर नहीं है उस पे एक हम अपने लेवल पे एक 8+8+8 रूल रखें। और उसके अलावा रेस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेस्ट नहीं करेंगे तो हेल्थ इफेक्ट होगी, फैमिलीज डिसफंक्शनल होंगी, और रेस्ट इनकॉर्पोरेट करेंगे लाइफ में तो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी ही। Okay, so individual level पे इंडिविजुअल इन लेवल कर इंडिया सकते हैं वर्क लाइफ इंडिया बैलेंस में को जो इजीली है फॉलो करने के वर्क लिए। लाइफ बैलेंस से एफिशिएंसी हैम्पर होती है ओके बट सर्टेनली वर्क लाइफ बैलेंस इज नॉट अ चॉइस फॉर एवरीवन
I think there are other dimensions to it. I think there are some persons like those who care in the emergency care of hospitals, someone like military personnel, others like bureaucrat and politicians. I don't think that they always are in a work-life balance situation. And coming Yes, to yes. the techie perspective of it, I think there is a case you might all have seen in the news. There is a Bangalore techie who is working in Microsoft. He's a in a high-paying job, but on the weekends he used to drive a auto just to relieve his loneliness. So I think that maybe it's the case of mismatch of work-life balance. Yeah, Also, yeah, I am agree Actually, with you. it's It is a depend whole on, new like, we category have I am set the also aware different with you. standard for our वर्क लाइफ बैलेंस. लाइक हम हर एक पीपल के लिए, हर एक इंसान के लिए वर्क लाइफ बैलेंस एक अलग स्टैंडर्ड है. लाइक किसी के लिए अगर विराट कोहली के लिए देखा जाए तो उसके लिए वर्क लाइफ बैलेंस है, उसका लाइक स्पोर्ट्स में उतना ही उसको ध्यान देना हाँ है, और सबके उसका डिफरेंट क्राइटेरिया और हैं। उसका पर्सन, यस हाँ, फिटनेस एक अलग, उसका एक अलग एस्पेक्ट है, उसका स्पोर्ट्स अलग एस्पेक्ट है. वहीं पे अगर हम कोई टीचिंग में देखें तो उनका एक है कि एक पर्सनल फैमिली को देना है, बाकी को जो टीचर्स को देना है. स्टूडेंट्स, एज ए स्टूडेंट्स हम लोग के लिए अलग होता है. एज अ जो सर बोल रहे हैं, श्रीकांत सर बोल रहे हैं कि उनका एज ए वर्किंग उनका 14-14 घंटा काम कराया जा रहा है, तो उनके लिए एक जो वर्क लाइफ स्टैंडर्ड है वो अलग है. या फिर हो सकता है कोई अपना वर्क लाइफ स्टैंडर्ड को, बैलेंस को इतना हाई सेट करके रखा हुआ है जो कभी सेट नहीं हो सकता है. या फिर जैसे सत्यन सर बोल रहे हैं कि वो हमारा अगर 15 to 20 मिनट्स अगर हम एक्सरसाइज के लिए निकाल पा रहे तो वो भी एक तरह का वर्क लाइफ बैलेंस है. सो वी आर डिफरेंट, लाइक हम लोग का पास अलग अलग ओपिनियन है, क्योंकि हम लोग का जो दिमाग में वर्क लाइफ बैलेंस का स्टैंडर्ड है वो अलग अलग है. जैसे सर के दिमाग में जो सत्यम सर के दिमाग में जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है. वो शायद वो बोल रहे कि 12 आवर काम कर रहा है, उसके बाद हमको टाइम नहीं मिल रहा है. रोहित सर के दिमाग में कुछ और है, वो बोल रहे कि यस वी कैन अचीव. रीना मैम के दिमाग में है कि हम लोग जो मैम ने बताया कि अलग अलग डिफरेंस के अलग अलग ओपिनियन है, क्योंकि हम लोग अलग अलग स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं. So that's why we are different. We have the same point, but we are expressing in a different way. यस It depends on ग्रुप में opinion कोई है जिनको regarding भी work बोलने life का मौका balance. नहीं मिला है. I think that ग्रुप में कोई है जिनको भी बोलने का मौका नहीं मिला है, वो सारी बोले. चीजें सही हैं, लेकिन कुछ तो मिनिमम एक पॉइंट होता है, मिनिमम एक लेवल होता है जिसको हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. हो सकता है कि सबका स्टैंडर्ड्स और सबकी डिमांड्स अलग, यस, सबकी डिमांड और सबकी चॉइसेस अलग हो Yes, yes. I think we should let Ayush also speak and put up his points. For Alam, there should be a minimum standard, and that should be decided by the government and the labor organizations. Also, we have seen in companies like they giving the 14 and 14-hour work, and हमारे देश में हमें पता है कि लोग कितने बेरोजगार हैं. तो why to handle to one person? We can hire for that 2%. If the requirement of the 2%, so we should go for the 2%. Why हम ऐसे लोगों का, it's like a शोषण. So if they will hire 2%, definitely both person will able to manage their work life balance. So and that can आपके But Rohit, that points depends on the company. Yes, I agree. आपके आजकल हम लोग points That देख will रहे हैं कि increase the प्राइवेट cost to कंपनियां company. हायर कर रही 10-10-12. Okay, conclude now. Anyone of you? Yes, may I conclude because I think I haven't got any chance to speak till now. So I think I would like to conclude because I have listened to most of the people's point. So work-life balance, as for me, I can think of is not a myth because it's a true thing. But the thing is, it depends on it is a variable parameter and it is a different percentage of work and life which everyone demands. It not only depends on one's choice because everyone is not doing a freelance work where everyone we can say is free. Most of the people are doing salaried jobs in which they have their certain higher authority which imposes a certain rule or certain constraint over them. So simply we cannot say that it's just a choice. It's a choice for most of the cases but not for all of us. And in order to improve the work-life balance, what we should do, we should be aware of our timing schedules. That's the best thing we can do. And apart from it, the certain organizations and governments have their own rule. Like instead of just having this 14 hours work rule, or they can just make the work bit more relaxing by having as one of my friend have said, like they can hire more people for the same work. So the work can be distributed at for different slots of time. So the same work can be done by a number of people for a small duration of time. So it will just help them
to just manage their life and the work. Although in that case the salary will be impacted, but at the same time they will be better able, in a better condition, to take care of their mental health and also give better time to their families. So at last I can say that it is an important aspect, and which is still in a question mark, because I think the government is not taking it seriously. So it has to be managed by both the people and the society. Okay, so friends, let me give you the now feedback of your discussion. So Aditya, first I start with you only. Aditya, conclusion is not the alternate of discussion, number one. So if you want to conclude, just conclude without saying that since I did not get a chance, I would like to conclude. And you try to mix discussion with conclusion. Don't do that. Conclusion simply means जो भी discussion हुआ है उसके बारे में आपने precisely बताना है. So if somebody has spoken some point without naming the person, you can always say that, friends, we had a good discussion here. The topic was quite interesting, and different members gave their different points. I would like to conclude on behalf of the entire group those points. So some members were of the opinion that work-life balance depends upon the profession and individual. Some said that, okay, work-life balance is more related to the discipline and not availability of the time. तो जो भी डिस्कशन हुआ है वो आप बीच में बोल दो, और अगर आपने लिखा है. And nothing new should be spoken in the conclusion. It should not look like that you are taking the opportunity of conclusion to give your new points. New points are not to be given in the conclusion. You are to speak the important points given by others in the conclusion. And so that is one thing you need to understand. The way you have spoken and the way you have participated, that was okay. So this is how you have to speak. That was good, but the structure was a little bit, it was not conclusion. You need to make it conclusion like structure. Now, let me tell, this entire topic started when Rohit Yadav started the discussion. He snatched the discussion, but Rohit, it was not a very good format of introduction. You started with that, okay, India is to work very hard. So that means you were giving the hint that, yes, there's nothing like work-life balance. We have to put more effort. So India needs to work hard. Even famous people work hard and maintain the balance. Then you gave example of Virat Kohli. So then you said, okay, it is person to person matter, and this is how you said. So Rohit, एक तो introduction का जो pattern था, that was not, structure was not very nicely given. I'll tell you what is the best way to introduce. And second is, आप जब बीच में बोलते हैं तो you snatch the discussion from others. Sometimes it looks like you are interfering with others and you are not letting others speak, though you can participate. So good thing is कि आप participate कर ले रहे हैं. Bad thing is ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों को पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे हैं. तो आपको कहाँ इंप्रूव करना है? स्ट्रक्चर पे इंप्रूव करना है. हाउ द इंट्रोडक्शन शुड लुक लाइक. आपको एंटर कर जाते हो आप आराम से, आपको इस चीज पे फोकस करना है कि जब आप बात करो ऐसा ना लगे कि दूसरा इंटरफेयर हो रहा है, उसको बोलने नहीं दिया जा रहा है. तो इट शुड नॉट लुक लाइक दैट, रोहित. So what can be the best way to introduce this topic? Maybe you will say that, hello everyone, my name is Rohit, and let me take the opportunity to introduce the topic to all of you. The topic today given is actually very interesting topic and important topic. It is work-life balance, and the kind of work, work profile we have nowadays. Work-life balance is something which we should talk about. So the topic is work-life balance is a myth. So friends, before we discuss this topic, I think first we should understand what is the work-life balance, and whether what are the factors which actually lead to the trouble in getting the work-life balance, and how we can achieve the work-life balance. And I do not agree with the statement that work-life balance is a myth. Certainly, wherever there is a human being in the work environment, he has to make a balance with his personal requirement and professional requirement. So as per my understanding, work-life balance means individual is part of society, part of family, and individual is also part of some organization. He is to make a balance between the two. Personal life and professional life में balance करना, उसी को work-life balance बोलते हैं. Work here means professional work, life means his personal life.
सो उन दोनों के बीच में बैलेंस को वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं, और वो मिथ नहीं हो सकता, वो रिक्वायरमेंट है। लेकिन वो बहुत से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, एंड वी शुड डिस्कस व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच वर्क लाइफ बैलेंस डिपेंड्स, एंड हाउ टू बैलेंस दीज थिंग्स सो दैट इट इज अटेन्ड। तो इस तरीके से आप एक क्लासिफिकेशन दो। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट और नॉट? If you agree with the statement, say yes, I agree with the statement. If you don't agree, say I don't agree with the statement. It is not a myth, it is an important thing, and we need to attain it. दूसरा, मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन के अंदर डिफाइन द थिंग्स। इफ यू फाइंड दैट वर्क लाइफ बैलेंस नीड्स टू बी डिफाइंड, तो रोहित यादव के इंट्रोडक्शन के बाद रोहित ने बोला और उसने डिफाइन करने का ट्राई किया। तो इंट्रोडक्शन में तुम्हें डिफाइन करने का ट्राई करना चाहिए। सो सर, व्हाट वी शुड स्पीक इन द इंट्रोडक्शन about the topic? If you need to define some term in the topic or the topic, define it. If you agree or disagree with the statement, you want to agree or disagree, do it. You want to give some classification how the discussion should go, tell it. These are the couple of ingredients for introduction. अब उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट हुआ। तो डिस्कशन में फिर रोहित आया, उसने बोला वर्क लाइफ बैलेंस होता क्या है, उसको डिफाइन करने का ट्राई किया, लेकिन बहुत अच्छा डेफिनेशन नहीं था रोहित, यू कुड हैव डिफाइंड इट बेटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चिल्ड्रन, वर्किंग आवर्स, बेंगलोर, ये आपने पॉइंट्स बोले। सो मेक इट श्योर दैट व्हेन एवर यू से समथिंग, अदर्स अंडरस्टैंड दैट। जो भी आप बोलना चाह रहे हैं वो बाकी समझें। यू कैन स्पीक इन हिंदी, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, बट वंस यू से इट, अदर्स शुड अंडरस्टैंड इट। सो रोहित, तुम्हारे बोलने से ये नहीं लग रहा था तुम बोलना क्या चाह रहे हो, और आज तुम बहुत ज्यादा एंटर नहीं कर पाए, मे बी ग्रुप वॉज लार्जर ग्रुप, तो तुम्हें बार बार एंटर करके अपना प्रिसाइजली पॉइंट एक्सप्लेन करना है कि पॉइंट तुम्हारा क्या है। तो आपको अभी इस चीज के ऊपर वर्क करना है कि आप कितना ज्यादा फ्रिक्वेंटली बोल सकते हैं, और जो बोल रहे हैं उसको आप एक्सप्लेन कर पाए। मैंने आपको ये बताया था कि एग्जाम्पल्स आर द बेस्ट वे इन विच यू कैन डिबेट और डिस्कस विद अदर्स। एग्जाम्पल के थ्रू आप करने की ट्राई करें। फिर सेंतन ने प्राइवेट एम्प्लॉइज और मेरे ख्याल से पब्लिक एम्प्लॉइज के बीच में सेंतन ने कुछ पॉइंट बोलने के ट्राई किया। ही सेड दैट प्राइवेट में ये होता है और उसमें ये होता है। सेंतन ने 2-3 बार पार्टिसिपेट करने का ट्राई किया। सो नंबर ऑफ टाइम्स विच यू एंटर्ड सेंतन, दैट वाज ओके, बट यू कुड नॉट यूटिलाइज फुली योर एंट्री। तो आप जब आए तो आप बाकियों के साथ डिबेट कर रहे थे, लेकिन अपना पॉइंट आप नहीं रख रहे थे बहुत ज्यादा। यू शुड हैव गिवन योर ओन पॉइंट्स आल्सो, whatever you wanted to say. So number of times you participated, that was okay, but what you were speaking, that was not okay. You were very precisely talking with others, what others were saying, but आपके पॉइंट नहीं आ रहे थे। सेंतन, आपको ये बोलने हैं, जैसे आपने प्राइवेट और पब्लिक के बाद में कंपैरिजन करना स्टार्ट किया, बट यू कुड नॉट वेरी क्लियरली टेल इट व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दैट। सो एक्सप्लेनिंग वेरी क्लियरली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन रीना का पॉइंट वैलिड पॉइंट थे, दो शी स्पोक लेस बट इट वाज क्वालिटी कंटेंट। She said that it is the time management, friends. It is not the time availability with you. It is a time management with you. And then she said, okay, there are people who are in some job profiles, और उन job profiles में उनको time को manage करना पड़ता है. And she also talked about urban versus rural, I suppose. And she also talked about job profile like sales, in which you need to, put more effort maybe. And then she talked about age factor also. सो रीना, आपके पॉइंट्स कंटेंट अच्छा था, बट नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव टू एंटर, यू नीड टू शो लिटिल एग्रेशन फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड ट्राई टू एंटर मोर टाइम्स। इफ यू हैव वेरी गुड कंटेंट बट यू डू नॉट इवन स्पीक इट और डोंट इवन एंटर, तो वो आपका कंटेंट वेस्ट हो जाएगा। यू नीड टू इनिशिएट, you need to enter again and again and speak. That is where you can improve. The content part is okay. Mehtab talked about future plan get disturbed or something when you are not maintaining. So Mehtab said, not many things are in your hands, so there are so many other factors also. Mehtab could enter and speak, but Mehtab, many times it was happening that when you were speaking, somebody else is also trying to enter or speak with you. You are not listening to him. तो ऐसा मैसेज आ रहा था आपका और रोहित यादव का जो मैसेज था वो ये था that you are speaking and you are not listening to others when you are speaking. जब तुम बोलते हो तो दूसरों को नहीं सुनते हो। ऐसा लगता है कि तुम अपने वे में एक अपने पर्टिकुलर पेज पे चल रहे हो, एंड यू आर नॉट वेरी सेंसिटिव के कोई और भी बोल रहा है। तो उस पार्ट पे थोड़ा सा वर्कआउट करना है। स्ट्रेंथ है कि आप बार बार बात कर सकते हो, वीकनेस है कि जब आप बात कर रहे हो तो दूसरों को नहीं सुन रहे हो,
वो एक फैक्टर तुम्हें ऐड करना पड़ेगा मेहताब, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू इट। फिर श्रीकांत ने बोला इनिशियल फेज ऑफ प्रोजेक्ट बहुत हेक्टिक होता है और उसमें वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है, शायद उस तरीके से जो था वो श्रीकांत की एंट्री थी और श्रीकांत ने बोलने का ट्राई किया। श्रीकांत बीच में बोलता भी रहा, 2-3 बार पार्टिसिपेट किया श्रीकांत आपने, दैट वाज देयर, बट आपको थोड़ा सा कंटेंट और अलग अलग डायमेंशंस में आपको बात करनी चाहिए थी। जैसे अगर आप 3-4 बार आए हैं, 3-4 अलग अलग पॉइंट्स पे बात करेंगे तो दैट विल लुक गुड। बाकी आपने ये जो पॉइंट बोला था इनिशियल फेज ऑफ द प्रोजेक्ट में, तो इसको एग्जांपल अगर दे सकते तो और अच्छा हो सकता है कि क्यों ऐसा आपको लगता है इनिशियल फेज में क्यों वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो सकता। फिर आप एग्जांपल दे सकते हैं कि जब भी कोई प्रोजेक्ट लगता है फ्रेंड्स, इनिशियली आपके बहुत से रिसोर्स होते हैं, सिस्टम को ऑर्डर में लाना पड़ता है, वो हेक्टिक फेज होता है। हेक्टिक फेज में वर्क लाइफ बैलेंस आपका कई बार नहीं बनता, लेकिन ऑब्वियसली उसको पहले तुम्हें डिफाइन करना है वर्क लाइफ बैलेंस होता क्या है। देखो अभी रात को 11-12 बजे बैठ के मैं भी काम कर रहा हूँ, आई हैव माई फैमिली, मैं काम कर रहा हूँ और सवेरे 8-9 बजे से स्टार्ट होता है काम। अगर आप मेरे को पूछेंगे सर अब वर्क लाइफ बैलेंस आपका है, मैं बोलूंगा बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिकॉज वो टाइम मैनेजमेंट वाली बात है। तो हर आदमी का एक काम है, जैसे आई थिंक समबडी टॉक्ड अबाउट के डॉक्टर्स हैं, आर्मी वाले लोग हैं, वो आयुष ने बात किया था प्रोफेशन बेस्ड के प्रोफेशंस होते हैं कुछ जिनमें डॉक्टर है, गायनोकोलॉजिस्ट है, उसको रात को कॉल आएगा वो जाएगा। तो डज दैट मीन कि डॉक्टर डज नॉट एंजॉय वर्क लाइफ बैलेंस? इट इज नॉट लाइक दैट। यू नीड टू डिफाइन वर्क लाइफ बैलेंस, you need to take care of the requirements of your family, take care of your health, take care of the job requirement। अगर आप उसमें बैलेंस कर पा रहे हो, डन। वर्क बैलेंस कर पा रहे हो तो इट इज डन। ऐसा नहीं कि संडे के दिन ही तुम्हें बच्चों के साथ खेलना है, तुम मे भी वीकडेज में शाम को भी उनके साथ खेल सकते हो, अगर तुम्हें संडे को काम करना है तो वो बैलेंस करना पड़ेगा। इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तुम समझ क्या रहे हो वर्क लाइफ बैलेंस से? क्योंकि हेक्टिक जो लाइफ प्रोफाइल लीड करते हैं, और जो तुम्हारा डायरेक्टर है, अगर तुम पावर ग्रिड के लिए जा रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारे डायरेक्टर का जरा भी टाइम नहीं होगा, तुम्हारे पास ज्यादा होगा। दैट डज नॉट मीन कि तुम वर्क लाइफ बैलेंस एंजॉय कर रहे हो, डायरेक्टर नहीं कर रहा है। कई बार आप बोलते हो क्यों ज्वाइन करना चाहते हो पीएसयू? सर यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है। आगे से आंसर आता है कि तुम्हें पता है हम 7 दिन काम करते हैं और 10 घंटे काम करते हैं, डज दैट मीन हमारे पास वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है? फिर तुम ट्रैप में फंस जाते हो। हमारे डायरेक्टर 15 दिन बाहर टूर पे रहते हैं, फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, डज दैट मीन डायरेक्टर का वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है? फिर तुम्हें इसका आंसर नहीं मिलता। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब फ्रेंड्स सैटरडे संडे ऑफ होना, 9 से 5, 5 बजे के बाद अपना काम ना होना, ये नहीं होता। वर्क लाइफ बैलेंस कुछ और है कि आपको 3 टास्क हैं, अपनी हेल्थ देखनी है, फैमिली को टाइम देना है, काम कंप्लीट करना है। ये 3 में बैलेंस कर पा रहे हो क्या? वो आपका सेलिब्रिटी भी अगर कर पा रहा है तो वर्क लाइफ बैलेंस है। अदरवाइज अगर तुम्हारे पास पूरा टाइम है लेकिन बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तब भी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। मान लो तुम सैटरडे संडे घर पे ही हो, लेकिन घर वालों को तुम जो काम करना चाहिए वो नहीं करके दे रहे हो, या बच्चों के लिए जो खेलना है वो नहीं कर रहे हो। एक हेक्टिक लाइफ लीड करने वाला सीईओ जो अपने बच्चे से खेलता है, वो फार बेटर है देन अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसके पास पूरा टाइम है लेकिन बच्चों से नहीं खेल रहा, तो उसने अपना काम पूरा नहीं किया। सो अंडरस्टैंड दैट वे वर्क लाइफ बैलेंस इज नॉट रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एट योर डिस्क्रिप्शन, इट इज हाउ यू यूटिलाइज द टाइम, वट एवर टाइम यू गॉट, क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, it is related to quality also, so that you need to understand friends and accordingly you have to discuss। उसके बाद आयुष ने वो प्रोफेशंस की बात किया, आकाश ने डिफरेंट लोगों के लिए बोला इसका डिफरेंट डेफिनेशन है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको समझते हैं। आदित्य ने इसको कंक्लूड किया, तो ये डिस्कशन था। अब आप में से कुछ लोगों ने बात किया, कुछ लोगों ने नहीं बात किया, कुछ ने बिल्कुल नहीं किया। जैसे कुछ लोगों ने जिन्होंने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया, ताराचंद ने नहीं किया, फिर आदित्य यादव ने लास्ट में किया, समंत श्रीवास्तव ऑल्सो स्पोक वेरी लेस, नॉट मच, ही ऑल्सो स्पोक वेरी लेस, एंड देन आयुष गोदारा, you also spoke less। Some people who kept on participating were, Rohit Yadav, Rohit, he was participating, Shrikant was participating, Mahtab Alam was participating, and these people were participating. Sayantan was participating little less than Reena, though participating but little less. Then Aritra Mal and Samant and Aditya and Tarachand were speaking less. So there are 3 categories of the people sitting here. One who are comfortably entering. Second, who are good in speaking, they can speak, but they were entering less. Third, who did not enter much, though they may be good in speaking. So पहला stage है you need to enter. The first stage is you need to enter. You need to start speaking like Mahtab Alam or Rohit Yadav. You need to start speaking. Maybe you are not listening to others. Maybe you are speaking which is not relevant.
maybe you are not very good in communication, but you are speaking. That is the first stage. And second stage is when you are speaking sense, you are talking about the topic, you are talking nicely. वो प्रैक्टिस से आएगा. तीसरा, हेजिटेशन खत्म करो. मतलब फिर आपने बोलना भी अच्छा स्टार्ट कर दिया, फिर आप दूसरों से बुलवा भी रहे हो. यू आर टेकिंग एज अ लीड, टीम वर्क. आप बोल भी पा रहे हो, दूसरों से बुलवा भी पा रहे हो. So that is a third stage. So there are 3 stages, and there are people who are in first stage, second stage, third stage. They are going. So none of you as of now is ready for GD. I can't send any one of you in the actual GD and can be assured that you will click it. वो नहीं होगा. हाँ, ये हो सकता है कि कुछ लोगों का कंटेंट के बेस पे उनको कम चांस मिला बोलने का, लेकिन कंटेंट के बेस पे वो इम्प्रेस कर पाए ऑब्जर्वर को. लाइक इफ समबडी इज सेइंग ओके वर्क लाइफ बैलेंस इज नॉट टाइम डिपेंडेंट, इज अ टाइम मैनेजमेंट. जैसे रीना ने टाइम मैनेजमेंट पॉइंट बोला, वो इंपॉर्टेंट था. या जैसे आयुष ने प्रोफेशन बताया, प्रोफेशन बेस्ड, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था. या बाकी कुछ लोगों ने और भी आपके पॉइंट्स बताए कि उस स्टेज पे भी डिपेंड करता है. सो कंटेंट कैन सेव यू इफ इवन इफ यू पार्टिसिपेटेड लेस, बट ट्राई टू स्टिक टू द स्ट्रक्चर. मेरे को ज्यादा बोलना है. This is how it will go. So I will not give you marks individually because you are still at a very nascent stage of discussion. Participate more. So then we ended up the session and we meet tomorrow. See you tomorrow. Thank you, friends.